Hello guys, so Farhan here. Assalamu alaikum. Let's start paper 5, Planning, Analysis and Evaluation, February, March 2017, variance 52. Guys, we have left only Feb, March 2016, variance 52, and I believe out of 8 papers I have solved 7, so you can solve the last one, okay, for your practice. So I left only one paper, Feb, March 2016, for your practice. So make sure कि वो attempt करें आप, ठीक है? Let's see what we have in this paper. The enthalpy change of reaction delta HR for the decomposition of sodium hydrogen carbonate cannot be measured directly. कि उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. एक सबसे कॉमन रीजन ये है कि ये सॉलिड सब्सटेंस है टारटीपी. सॉलिड सब्सटेंसेस की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकती. इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वेल थर्मली स्टेबल होते हैं. Requires more amount of energy, so need high temperature for that. And obviously इस high temperature को laboratory में achieve करना difficult होता है, which is why you cannot measure it directly. Student must carry out 2 separate experiments and use the result of these experiments to determine the enthalpy change of reaction for the decomposition of sodium hydrogen carbonate. अगर वो आपसे 2 separate experiments की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर Hess's law अप्लाई होगा, because Hess's law से आप सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं via one step or more than one step. All right, so obviously यहाँ पर Hess's law अप्लाई होगा. Suggest why the enthalpy change of reaction for the decomposition of sodium hydrogen carbonate cannot be measured directly. तो reason यही है जो हमने लिख के दी. Sodium hydrogen is very stable to heat. Is very stable to heat. Require lot of energy, so it is difficult to achieve such high temperature in lab or in laboratory. Okay. In both experiments, the student used weighing board. ये weighing board जो होती है, ये अक्सर आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिपेंड करता है कौन सा apparatus आप यूज कर रहे हैं लैब में अपने. So weighing board is a small vessel. Weighing board is a small vessel used to contain solid samples when they are weighed. Experiment 1 की बात कर रहे हैं हम. Experiment 1 की बात कर रहे हैं. Reaction between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid. Step 1 क्या है? Step 1 में कह रहे हैं कि student added approximately 3 gram of sodium carbonate. Make sure कि याद रहे कि आपने 3 gram of sodium carbonate solid use किया था to a weighing board and accurately measured the combined mass of weighing board and sodium carbonate. This mass was recorded in table 1.1. The student used a measuring cylinder to measure 50 cm cube of 2 mole per dm cube. Remember again, the volume and concentration of HCl is given and we are using measuring cylinder. That indicates कि भाई ये accurate volume नहीं है. 50 cm cube बोला, 50.00 नहीं कहा या 50.0 नहीं कहा, right? So not an accurate volume, which is why हम measuring cylinder use कर रहे हैं. And obviously अगर हम measuring cylinder use कर रहे हैं तो इसका मतलब HCl might be in excess, right? मैंने पहले भी कहा है आपको. So might be in excess. ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि हम सही कह रहे हैं गलत. बट जब भी कोई चीज
मेजरिंग सिलेंडर से मेजर हो रही है, इसका मतलब वो एक्सेस अमाउंट के अंदर हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट इज experiment was carried out, results were recorded in table 1.0. The students weighed the empty weighing board and recorded the mass in table. Okay, तो टेबल जो है वो आपके पास कुछ ये है कि mass of weighing board plus sodium carbonate given है, mass of empty weighing board after addition of sodium carbonate to HCl भी given है। तो ये क्या है आपके पास, आप जानते ना weighing board के अंदर सोडियम कार्बोनेट 3 ग्राम आपने लिया, उसको उठाकर आपने HCl के बीकर में प्लेस किया, तो यकीनन उस वेइंग बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ सोडियम कार्बोनेट का रेजिड्यू रह जाएगा ना, ये उस रेजिड्यू का मास है। ऑलराइट, लेकिन तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कि वेइंग बोर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांसफर करने के बाद। ठीक है, लेकिन नोट करने की एक और भी बात है, उसने कहा है स्टूडेंट रीवे द एम्प्टी वेइंग बोर्ड। आपने स्टार्टिंग में तो एम्प्टी बोर्ड वे ही नहीं की, आपको ये पता ही नहीं है कि एम्प्टी वेइंग बोर्ड का मास कितना है। दैट्स द मिसिंग पार्ट ऑफ दिस डेटा। मास ऑफ एम्प्टी वेइंग बोर्ड इज एक्चुअली मिसिंग। ओके, वो गिवन नहीं है, which is why यहाँ पर एग्जामिनर ने कोई वैल्यू कोट नहीं की हुई। Anyhow, वो कह रहे हैं टेम्परेचर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, तो आप नोट करें ये आपके सारे टाइम हैं और ये आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर टेम्परेचर नोट किया है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आपका मिसिंग है, इसकी वैल्यू मिसिंग है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मिसिंग है। ओके ठीक है, फोर्थ वैल्यू मिसिंग है, राइट, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग। वैल्यू इज नॉट गिवन, सही है ना। ओके ओके ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि फोर्थ मिनट के ऊपर आपने ये 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऐड किया होगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना है ये नहीं पता हमें, बात समझ में आ रही है। ये जो 3 ग्राम था आपके पास, ये आपने एक्चुअली कब ऐड किया, फोर्थ मिनट पे जाके ऐड किया। कितना मास है ये नहीं पता, सही है, और कितना 3 ग्राम ऐड किया लेकिन कितना टेम्परेचर है ये नहीं पता। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, ये मिसिंग तो है, ये तो हमें नजर आ रहा है, बेहतर ये कि हम यहाँ पर ये मेंशन करें कि 3.0 ग्राम of sodium carbonate is added in HCl, but we cannot determine the temperature। ठीक है, ये टेम्परेचर हम नहीं निकाल सकते, दैट इज अ मिसिंग पार्ट फोर्थ मिनट के ऊपर, सही। ओके, वो कह रहे हैं आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट्स कैरिड आउट स्टेप 3 ऑफ द एक्सपेरिमेंट, you may find it helpful, write your answer in a series of smaller steps। स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या कह रहा है, the experiment was carried out and the results were recorded in table 1.2। so आपको यार डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर टेम्परेचर नोट डाउन करना है, और टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए आप 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को 50 cm³ ऑफ 2 मोल पर dm³ HCl के अंदर प्लेस कर रहे हो, और उसके थ्रू आप एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो। तो एंथैल्पी चेंज जब भी निकालते हैं हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, सिंपल कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर सिंपल कैलोरीमीटर का एपरेटस या एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको लिख कर दूंगा, ठीक है। और
चैलेंजिंग होगा, कितने मार्क्स का है ये नहीं पता, 3 मार्क्स का है, ओ माय गुडनेस, अनफेयर है ये तो, काफी लिखवाना है और फिर 3 मार्क्स। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, हम एक पॉलीस्टाइरीन कप लेंगे जिसको हम प्लास्टिक कप भी कहते हैं, ठीक है, और उस प्लास्टिक कप को उठाकर हम 250 cm क्यूब बेकर में प्लेस कर देंगे। टेक अ पॉलीस्टाइरीन कप and place it in a 250 cm cube beaker. Okay. अब बीकर के बाद क्या करेंगे आप, allow lagging, that is your cotton wool, between beaker and plastic cup. If you remember, मैंने इसी तरह से डायग्राम भी बना के दी थी आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद हम मेजिंग सिलेंडर से 50 cm क्यूब 2 मोल पर dm क्यूब HCl मेजर करेंगे और उसको प्लास्टिक कप में प्लेस करेंगे, ठीक है, by using ना 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 ना, इसको थोड़ा और बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं, मेजर 50 cm cube, nope, 50 cm cube, the 50 cm cube of 2.00 mole per dm cube HCl through measuring cylinder and place it in a polystyrene cup. Okay, and then place it in a polystyrene cup. पॉलीस्टाइरीन कप में प्लेस करने के बाद मैं थर्मामीटर यूज करके इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन कर लूं बाय यूजिंग, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग thermometer measure the initial temperature ठीक है, और इस इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं जो 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है उसको प्लेस करूंगा इस प्लास्टिक कप में, ऐड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट सो ऐड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब सॉलिड कार्बोनेट ऐड कब कर रहा हूं मैं, 4th मिनट पे ऐड कर रहा हूं, उससे पहले ऐड नहीं किया मैंने यहाँ पर, सही है। सो ऐड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट एट 4 मिनट in a polystyrene cup उसके बाद क्या करेंगे आप, रिएक्शन होगा ऑब्वियसली, उस रिएक्शन की वजह से जो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी उसको नोट डाउन करेंगे। सो मेजर द फाइनल टेम्परेचर, final temperature, that is T2, and by using these two I can find the change in temperature, change in temperature determine करो,
ओके अच्छा, टेम्परेचर चेंज डिटरमिन कर रहा हूँ, लेकिन आप नोट करें 5 मिनट्स ऑनवर्ड्स जो है ना वो मैं रीडिंग नोट डाउन करना शुरू करूंगा, यानी एवरी मिनट इंटरवल पे, ठीक है। 24.6 पे 24.7 पे 24.5, ठीक है, तो एवरी मिनट इंटरवल पे। तो वो कह रहे हैं ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द एपरेटस, सिंपल कैलोरीमीटर का एपरेटस बनाएंगे। ये एपरेटस बहुत सिंपल सा है, एक प्लास्टिक कप लेंगे, उस प्लास्टिक कप को रखेंगे हम बीकर के अंदर, एंड ऑब्वियसली प्लास्टिक कप और बीकर के दरमियान हम लैगिंग करेंगे, और लैगिंग के लिए मैंने ये कलर यूज कर लिया। लैगिंग बेसिकली आपकी कॉटन वूल होती है, सही है। ऑलराइट, इसी प्लास्टिक कप के अंदर हम एक थर्मामीटर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस प्लास्टिक कप के अंदर आपके पास 50 cm क्यूब ऑफ 2.00 मोल पर dm क्यूब HCl है। ये आपका थर्मामीटर है, जो आपका लेबोरेटरी होती है, जो आपकी लैब होती है, उस लैब के अंदर जो थर्मामीटर आप यूज करते हैं वो बेसिकली -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, ठीक है। ये रेंज होती है उस थर्मामीटर की। इसके अलावा ये क्या है आपके पास, प्लास्टिक कप, जिसको आप पॉलीस्टाइरीन कप भी कहते हैं। ये आपका क्या है, बीकर। ये आपकी क्या है, लैगिंग, एंड लैगिंग इज बेसिकली कॉटन वूल, ओके, ऑलराइट। और बीकर में कितने वॉल्यूम का यूज कर रहा था, 250 cm क्यूब का, रिमेंबर मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, सही है, उसको मेजर कर दिया मैंने। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यकीनन आपने इसमें सोडियम कार्बोनेट भी तो ऐड किया था, तो सोडियम कार्बोनेट भी आ जाएगा। ठीक, एंड ऑब्वियसली हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए आपने यहाँ पर लैगिंग कर दी, तो यहाँ पर मैं कवर लिड लगा सकता हूँ टू प्रिवेंट हीट लॉस। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। ये हीट कवर लिड हो जाएगी हमारी। और ये कवर लिड हम क्यों लगा रहे हैं, हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट हीट लॉस, ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये हमें समझ, हमने ये कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट, the student plotted a graph of these results due to lines of best fit which were both extrapolated as shown, ठीक है। ये बनी बनाई हमें मिल गई हैं लाइंस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द थ्योरेटिकल टेम्परेचर इंक्रीज एट 4 मिनट्स। 4 मिनट तो ये है, तो थ्योरेटिकल इंक्रीज इन टेम्परेचर डिटरमिन करना है। एक्सट्रापोलेट कर दिया आपने 4 मिनट के ऊपर, तो ये मैंने 4 मिनट पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि एक लाइन ये आ रही है, राइट, और दूसरी लाइन ये आ रही है, ठीक है। नहीं, इक्विलिब्रियम जब होता है तो मेंटेन करते हैं ना हम, जब इक्विलिब्रियम लेते हैं तो आता है ये। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे तो होगा, और हम कहेंगे ये आपका ये आ जाएगा बेटा, ये, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 19.8 आ रही है, ओह माय गुडनेस, 19.8 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 25.1, ओके।
तो ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T1 हो गया। इन दोनों को यूज करके बेटा हम टेम्परेचर चेंज डिटरमिन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए, डेल्टा T निकालने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे। T2 हमारे पास है 25.1 माइनस T1 हमारे पास है 19.8। तो यहाँ से आपके पास टेम्परेचर चेंज कितना आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 20.1 माइनस 19.8 इज गोइंग टू बी 5.3। ठीक है, तो ये 5.3 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक पहले भी मैंने ये करवाया एक क्वेश्चन आपको जून सेशन के अंदर, आई बिलीव सेम क्वेश्चन था, सेम ग्राफ बनाया था। बस फर्क इतना है कि ये ग्राफ इस वक्त एग्जामिनर ने प्लॉट किया हुआ है, ये हमने प्लॉट करके दिया था। और हमने उस ग्राफ में भी इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन हमने ये कहा था कि भाई ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 20 से, लेकिन फिर ये नीचे ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होकर कांस्टेंट हो गया। तो क्यों हो रहा है ये? भाई ये तो इनिशियल टेम्परेचर था आपका, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर आप कह सकते हो। जब आप थर्मामीटर प्लास्टिक कप में प्लेस करते हो तो वो थर्मामीटर उस प्लास्टिक कप के सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, इक्विलिब्रेट होता है, और फिर जब इक्विलिब्रेट हो जाता है तो वो टेम्परेचर पे मेंटेन होता है। तो ये टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम है। ऑलराइट, हमने उस वक्त ये बात आपको समझाई थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स गोइंग टू बी अनॉमलस पॉइंट, क्योंकि ये लाइन ऑफ बेसिस से बाहर हो गया, ठीक है, एक्सट्रापोलेशन से बाहर हो गया ये। ओके, I hope it makes sense to you. I hope. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, use table 1.1 on page 2. Page 2 table 1.1, table 1.1 page 2, ये रहा table 1.1। ओके, this one, इस टेबल को यूज करना है और यूज करके क्या करें, determine the mass of sodium carbonate which was added to HCl. Use this value in your answer to C to determine the enthalpy change delta H1 for the reaction shown. Give your answer to 3 significant figures. 3 significant में आंसर जान, use the table on page 2. तो पेज 2 पे क्या क्या गिवन है भाई, पेज 2 पे आ जाइए। पेज 2 पे मुझे गिवन है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वेइंग बोट। सही है, ये लिखता हूं मैं, वहां पर बार बार बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, बट जरूरी है लिखना। यहां लिखते हैं मास ऑफ वेइंग बोट प्लस सोडियम कार्बोनेट, और इसका मास आई थिंक 4.15 ग्राम था। उसके बाद उसी चार्ट में और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एम्प्टी वेइंग बोट आफ्टर एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू HCl 0.97 ग्राम है। सही है यार, ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको कौन दोबारा से लिखेगा? एक काम करते हैं, इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सही है, अगर ये कॉपी हो गया 0.97 एक वैल्यू है 0.97 ग्राम। लेट्स सी के वो कॉपी हो जाए। आई होप नहीं हो रहा कॉपी यार, लिखना पड़ेगा मास ऑफ एम्प्टी weighing boat, my goodness, weighing boat plus mass of empty weighing boat plus after addition of sodium carbonate, after addition of sodium carbonate। ये आ गया, ठीक है जी। वो हमसे कह रहे हैं डिटरमिन द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वैल्यू यूज योर आंसर टू सी। सी क्या है जनाब? सी ये है, ये वैल्यू 5.3 मुझे चाहिए।
5.3 डिग्री सेल्सियस। चलें, सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ से मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिटरमिन कर लेता हूँ। मेरे पास 4.15 है और 0.97 है, राइट। ये दोनों वैल्यूज थी ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, विच इज 3.18 ग्राम। सही है जनाब। मुझे एमआर ऑफ सोडियम कार्बोनेट भी खुद से डिटरमिन करना है, एग्जामिनर ने नहीं दिया लेकिन उन्होंने डिटरमिन करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो 23 × 2 + 12 + 16 × 3, तो ये हो जाए 106। तो मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएंगे आपके पास 3.18 डिवाइडेड बाय 106, so 0.03 मोल्स आ जाएंगे मेरे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये कि हमारे पास HCl भी था, अगर आपको याद हो तो 1000 मैं यहाँ से मोल्स ऑफ HCl निकाल लेता हूँ। मोल्स ऑफ HCl निकालने के लिए मुझे उसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl कंटेन हाउ मच मोल्स, वो हमें गिवन था मेरे ख्याल से 2 मोल और 50 cm क्यूब था। सो 1000 cm क्यूब कंटेन 2.00 मोल। तो अगर 50 cm क्यूब आपके पास HCl है तो ऑब्वियसली कितना वॉल्यूम मोल्स कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 into 50 डिवाइडेड बाय 1000, so it's going to be 0.1 moles। तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे हमारे पास 0.1 मोल। तो एक बात तो तय हो गई, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब ये एक्सेस अमाउंट पे है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या दिया था कि HCl एक्सेस अमाउंट के अंदर है या होना चाहिए, क्योंकि आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहे हैं। प्रूफ हो गई बात, सही है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये मैंने मास डिटरमिन किया, अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली। सो पेज 2 के ऊपर इन दोनों वैल्यूज को यूज करके मैंने ये डिटरमिन किया, ये मैंने खुद से निकाला, इसके मोल्स निकाल लिए, HCl की कंसंट्रेशन वॉल्यूम था उसकी भी मोल्स निकालिए, लिमिटिंग आ गया। अब मुझे डेल्टा H कैलकुलेट करनी है। सो काफी लेंथी कैलकुलेट, हाउ मच मार्क्स फॉर दिस। अच्छा, ये स्टेप्स भी करके दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, अदरवाइज लेंथी होगा नहीं है। ये हो जाएगा MC डेल्टा T। M क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपने 50 cm क्यूब HCl लिया था, and since 1 cm cube is always equals to 1 gram in such cases, which means 50 cm cube is equals to 50 gram। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 क्वेश्चन में गिवन है। टेंपरेचर चेंज हमने 5.3 निकाला था पार्ट सी के अंदर, जिसको यूज करने के लिए एग्जामिनर ने कहा था। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 50 into 4.18 into 5.3 is going to be 1107.7 1107.7 जूल्स, राइट। इसको हमने क्या करना है, किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किलो जूल्स में आ गया, दैट इज 1.1077 किलो जूल्स। अब मसला ये मुझे तो एंथैल्पी चेंज निकालना है, और जब भी हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं इट हैज टू बी इन किलो जूल्स पर मोल अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। तो भाई मोल्स लिमिटिंग वाले यूज होंगे, तो मैं कहूंगा 0.03 मोल्स gives you 1.1077 किलो जूल्स एनर्जी। तो अगर 1 मोल है आपके पास तो एनर्जी कितनी होगी, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.03 से, हमारे पास आंसर आएगा 36.92। तो यहाँ से डेल्टा H1 मेरे पास कितनी आ गई, 36.92। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल। तो हम यहाँ लिख देंगे 39
36.92 ऑलराइट। और उन्होंने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर, तो भाई मैं 36.9 पे ही स्टिक करूंगा। ओके। और आप नोट करें इसमें जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो माइनस का साइन है ऑब्वियसली। अगर आप देखें इससे पता चल रहा है, इस टेम्परेचर के ड्रॉप होने से पता चल रहा है कि जी एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई स्टूडेंट डिड नॉट ऐड सोडियम कार्बोनेट टू द HCl एट 0 मिनट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 0 मिनट के ऊपर जब सॉल्यूशन के साथ अपने आप को इक्विलिब्रेट करेगा, और जब वो इक्विलिब्रेट कर लेगा तो फिर आप इस 4th मिनट के ऊपर जाकर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे। ओके, आई होप मेक सेंस टू यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विलिब्रेट thermometer require few minutes, which is why we did not add sodium carbonate at 0 minute। सही है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि भाई सजेस्ट व्हाई द टेम्परेचर मेजर्ड एट 5 minutes was lower than the temperature measured at 6 minutes। ये कम है एज कम्पेयर टू 6, उसूली तौर पे ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा क्यों, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप 4th मिनट के ऊपर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है वो सोडियम कार्बोनेट सारे का सारा तो HCl से रिएक्शन नहीं कर चुका होगा, उसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, वो स्टिल रिएक्शन के प्रोसेस से गुजर रहा होगा, इसलिए एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा। ऑलराइट, सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा। तो मैं ये क्या दूंगा, कि एट दैट पॉइंट sodium carbonate still undergoes reaction with HCl, which means energy is released from system to surrounding। From system to surrounding at 5 minutes। ठीक है, ठीक है। तो कम एनर्जी मुसलसल रिलीज हो रही होगी क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट 2, reaction between sodium hydrogen carbonate and dilute hydrochloric acid। The student weighed an empty weighing board। अच्छा, पहले empty weighing board नहीं था, अब दे दिया उसने, and recorded the mass in table 1.3। The student added exactly 4.20 gram, पहले 3 था अब 4.20 gram of sodium carbonate ऐड किया,
and because of that into the weighing board and recorded the mass in table this. The student carried out the same experimental procedure as step 2 and step 3 for experiment 1. Okay. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये कि वो कह रहे हैं explain why the method of determining the mass of solid added in experiment 2 is less accurate than the method of determining the mass of solid added in experiment 1. उन्होंने देखो mass of empty weighing board दिया, mass of board plus sodium hydrogen carbonate दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो mass of sodium carbonate added आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इस दफा mass of weighing empty weighing board after plus sodium hydrogen carbonate after the addition of HCl नहीं दिया, यानी ये वाला पॉइंट जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये नहीं मेंशन किया इस दफा, सही है, इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। आपको नहीं पता कि कितना वेइंग बोर्ड के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रह गया आफ्टर द एडिशन in HCl, तो we don't know exactly how much left in the weighing board, which is why it is not accurate. तो हम यहाँ पर कहेंगे कुछ बेहतर सा वर्ड यूज कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसफरिंग sodium hydrogen carbonate into HCl, some of the solid sodium hydrogen carbonate is still left, sodium hydrogen carbonate residue left in a weighing board ठीक है, जिसकी वजह से एरर हुआ होगा। In experiment 2, 50 cm cube measuring cylinder was used to measure 50 cm cube of HCl. 50 cm cube measuring cylinder and 1 cm cube graduation. Okay, 1 cm cube की graduation है और 50 cm cube का measuring cylinder है। और हमें measure कितना करना है? 50 cm cube of HCl। वो आपसे कह रहे हैं calculate the maximum percentage error in measuring 50 cm cube of HCl with this 50 cm cube of measuring cylinder. Since the graduation is 1 cm cube, so error in single reading would be half, that is plus minus 0.5 cm cube. वो कह रहे हैं परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर डिटरमिन करने के लिए एरर इन सिंगल रीडिंग कितना हो जाएगा? 0.5, उसको मैं डिवाइड करूंगा वॉल्यूम से, और मेरे पास वॉल्यूम कितना है? मेरे पास वॉल्यूम है 50 cm क्यूब और मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, तो मेरे पास यहाँ पर परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 1, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा मल्टीप्लाई 2 करते हैं, हमने यहाँ पर क्यों नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया? इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग नोट करते हैं, आपने अक्सर लैब में देखा होगा, हम उसका इनिशियल रीडिंग नोट नहीं करते, हम ब्यूरिट की इनिशियल रीडिंग करते हैं, फाइनल रीडिंग करते हैं, लेकिन जब हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं हम उसमें कोई इनिशियल रीडिंग यूज नहीं करते, हम वॉल्यूम लेते हैं और मेजर कर लेते हैं, राइट? इसका मतलब रीडिंग एक ही दफा ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती, 2 टाइम्स नहीं ली जाती, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करूंगा यहाँ पर। सही है, ठीक है जी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Explain why measuring the concentration of 2 mole per dm cube is more precisely would not affect the result of the experiment. तो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा
कि HCl जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, सही है। तो जो भी चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है उससे फर्क नहीं पड़ता। यस, देखो इसका वॉल्यूम भी लिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन भी सेम ली हुई है, इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, एक्सेस में ही होगा। तो आप बता दीजिए। दिस इज बिकॉज 2.00 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड must be in excess which means concentration has no effect on the result of the experiment. Okay, next, suggest what the student should change to reduce the percentage error associated with the temperature reading without changing the apparatus. ये बहुत अहम बात है कि मैं apparatus को change नहीं कर सकता। तो जब मैं apparatus को change नहीं करूंगा, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि percentage error calculate करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। और percentage error calculate करने के लिए जरूरी है कि मैं फॉर्मूला यूज करूं एरर इन सिंगल रीडिंग, और तुम जानते हो कि मैं एपरेटस चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब एरर इन सिंगल रीडिंग भी चेंज नहीं कर सकता, ये भी चेंज नहीं होगी एरर इन सिंगल रीडिंग, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द एपरेटस, सो आई कैन नॉट चेंज द एरर इन सिंगल रीडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर चेंज इन 200। समझ आ रही है बात। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर कम करना है तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा तो परसेंटेज एरर कम होगा। और टेम्परेचर चेंज कब ज्यादा होगा, टेम्परेचर चेंज उस वक्त ज्यादा होगा जब ये जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा कह दो या इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा कह दो, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा या नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर चेंज फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर चेंज भी बढ़ेगा। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो we need to increase this so that percentage error decreases. It will remain same because I'm not changing the apparatus. यार इसको कैसे लिखेंगे, लिखना is an art here. So तो हम लिखेंगे temperature change must be higher, ठीक है। And how can you do that? By increasing the amount of limiting reactant. ठीक है, that is more sodium hydrogen carbonate. सोडियम कार्बोनेट नहीं लूंगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लूंगा, बिकॉज दिस टाइम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट 2 की बात करें, 1 की बात नहीं करें, बट कॉन्सेप्ट वही है एग्जैक्ट, ठीक है। दैट इज मोर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट must be used. This lowers the percentage error. बात समझ में आई। सोडियम कार्बोनेट का जो कॉन्सेप्ट है वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट है। तो वो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई आप टेम्परेचर इसका अमाउंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा यूज कर लीजिए, उसके मोल ज्यादा यूज कर लीजिए, उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट या मास ज्यादा यूज कर लीजिए, तो टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, परसेंटेज एरर कम होगा, क्योंकि ये तो रीडिंग चेंज नहीं होगी। I hope you get the point now. That's a very lengthy question, guys.
The student used the results from experiment 2 and correctly determined the enthalpy change for the reaction between sodium hydrogen carbonate and HCl. Delta H2 भी plus 24.2 kilojoules. भाई सबसे अहम बात ये आ गई कि डेल्टा H2 जो है वो एंडोथर्मिक है, जबकि डेल्टा H1 जो था वो एक्सोथर्मिक था। डेल्टा H1 हमने कैलकुलेट किया था, डेल्टा H2 एग्जामिनर ने हमें खुद से दे दिया। वो कह रहे हैं यूज द एक्सेस टू ड्रॉ अ स्केच ग्राफ ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 2। माय गुडनेस, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यहाँ पर था और टाइम इन मिनट्स यहाँ पर था, और हमने ये स्केच बनाया था ना कि यहाँ से यूं लेकर गए और फिर ये सारे हमने इस तरह से बनाया। कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाओ, ये कैसे बनेगा? तो ये डेफिनेटली ज्यादा होगा, ये कम होगा। सो मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। ऐसे कर दूं, यहाँ रीडिंग्स लाते हैं 1 2 3 4 5 रीडिंग्स, ठीक है। एक रीडिंग यहाँ लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर आ जाते हैं। सही है, कर सकते हैं ना इस तरह से। ये आ गया, सही है। नो 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 नो, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा यहाँ से, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो में टेम्परेचर राइज होता है, एंडो में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, राइट। और ये आपको एक्स्ट्रापोलेट होकर ये आ जाएगा टेम्परेचर चेंज। समझ आ रही है बात? दैट्स हाउ योर इनिशियल एंड योर फाइनल। ये आपका T1 होगा, ये आपका T2 होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं हम इसमें। 2 मार्क्स का है तो 1 और 2 ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो पता है ना आपको कि ये इनिशियल आपने डिप किया था थर्मोमीटर को इस पॉइंट के ऊपर, और फिर वो इक्विलिब्रेट होने में टाइम ले रहा है। तो इक्विलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली, ओके। यूज डेल्टा H1 फ्रॉम D। तो यार डेल्टा H1 की वैल्यू माइनस 36.9 थी जहां तक मुझे याद पड़ता है, -36.9, यस, ठीक है। तो ये वैल्यू थी -36.9 एंड डेल्टा H2 फ्रॉम H, इसकी वैल्यू हमें एग्जामिनर ने खुद दी थी, दैट इज 24.2 प्लस 24 पॉइंट उप्स 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 प्लस 24.2, राइट। वो कह रहे हैं डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR करो for the decomposition of sodium hydrogen carbonate, an energy cycle has been drawn for you। आप नोट करें, ये Hess's law thermochemical cycle है। वो कह रहे हैं आपसे Hess's law thermochemical cycle तो हमने समझा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को बना दीजिए। ऑब्वियसली ये वाला एरो भी प्लस है, ये वाला एरो भी प्लस है, ये इन दोनों की वैल्यूज को प्लस लूंगा। ये प्लस नहीं है, आई मीन ये माइनस होगा, इक्वल्स टू 0 करूंगा, आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले वैल्यू डिटरमिन करते हैं, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24.2, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैल्यू कितनी है, 24.2। एंड ऑब्वियसली गाइस उसने यहाँ लिखा है किलोजूल्स पर मोल, तो ये 1 मोल की एनर्जी आई है, जबकि यहाँ पर मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है, 2 मोल। इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की एनर्जी कितनी आई थी, -369.1 माइनस, सॉरी यार, 36.9, सॉरी फॉर दैट, 369.1 कह रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, -36.9, ठीक है। और ये 1 मोल की थी और ये भी 1 मोल ही है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ। गाइस अब ऑब्वियस है बहुत, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, इक्वल्स टू 0 करूंगा मैं। मेरा आंसर आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा HR प्लस -36.9 इंटू 1 माइनस प्लस 24.2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। वाई इक्वल्स टू 0 बिकॉज आई नीड टू फाइंड इट। इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा
HR की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, -85.3 किलो जूल्स पर मोल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -85.3। ठीक है, 2 मार्क्स का पार्ट है तो 2 मार्क्स हमने सॉल्व करके दे दिए उसको। ओके, सो that's the end of question number 1. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में obviously transition metal complex ions are colored. That's a fact. The formula of a complex ion can be determined using calorimetry experiment. और जब calorimetry experiment करते हैं, according to my lecture, हम absorbance note करते हैं। Note the absorbance। और absorbance जो है वो कलर के थ्रू हमें मिलती है हमेशा। जितनी ज्यादा इंटेंस कलर शो कर रहा होगा उतनी ज्यादा absorbance होगी। अगर absorbance ज्यादा है तो इसका मतलब कलर इंटेंस है। कलर उसी वक्त इंटेंस हो सकता है जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो। So basically concentration and absorbance both are directly proportional to each other. Note the absorbance. Okay. In calorimetry, light of a certain wavelength is passed through the complex ion solution. वो फिर कह रहे हैं आपसे the absorbance of the light is proportional to the intensity of the color of the solution. The more concentrated the complex ion solution, the more intense the color, and so higher the absorbance. That's a fact. That's a law actually. In physical chemistry इसका एक नाम है, बट वो हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। But this is the statement of the law. Okay. A student carried out an experiment to determine the formula of the complex ion form between aqueous iron 3 ions and aqueous 2-hydroxybenzoate ion, which have the structure shown. Okay. क्या पता चल रहा है भाई इस स्ट्रक्चर से? इस स्ट्रक्चर से मुझे एक बात पता चल गई, और मुझे बात ये पता चली कि नेगेटिव चार्ज इस पर है ना, एक लोन पेयर यहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा। इसका मतलब 2 लोन पेयर्स हैं। इसका मतलब ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, और बाइडेंटेट लाइगेंड का काम क्या होता है? 2 डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, फॉर्म्स 2 डेटिव बॉन्ड। सही है, तो ये एक लाइगेंड 2 डेटिव बॉन्ड बना लेगा, ये ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। इन फर्स्ट स्टेप द एक्सपेरिमेंट, द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 100 cm cube of 0.05 mole per dm cube aqueous iron 3 nitrate. Again, you know the volume, you know the concentration of iron 3 nitrate, hence you can find the moles of iron 3 nitrate, and from that we need to determine the mass in gram of solid hydrated iron 3 nitrate needed to prepare 100 cm cube of this. Okay, so सबसे पहला काम, I know the, ये हो जाएगा 1000 cm cube of iron 3 nitrate FeNO3 taken 2 contain how much moles? 0.0500 moles, right? So अगर मेरे पास 100 cm cube है, so बताइए मेरे पास मोल्स कितने होंगे? So guys, मेरे पास मोल्स कितने हो जाएंगे? Oh God, 100 into 0.05 divided by 1000 is going to be 5 into 10 to the power -3 moles. So moles of iron 3 nitrate कितने हो जाएंगे? आयरन 3 नाइट्रेट है, एक मिनट, 5 times 10 to the power -3 moles। ठीक है, ओके। और हमसे कह रहे हैं कि मास ऑफ सॉलिड हाइड्रेटेड आयरन 3 नाइट्रेट कैलकुलेट करो। तो यार नजर आ रहा है आपको, ये तो बहुत ऑब्वियस सा है कि अगर आपके पास हाइड्रेटेड आयरन 3 नाइट्रेट है .9H2O, तो उसमें आयरन 3 नाइट्रेट के एक्चुअली कितने मोल हैं? एक ही मोल है ना, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो अगर आपने यहाँ पर 5 into 10 to the power -3 मोल्स कैलकुलेट किए हैं,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 3 नाइट्रेट की भी मोल्स सेम हो जाएंगे। दैट इज 5 into 10 to the power minus 3 मोल्स। मुझे इसके मोल्स मालूम हो गए, मुझे इसका एमआर निकालना है। एमआर निकालूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। सो टेक आउट द एमआर। एमआर ऑफ FeNO3.9H2O। ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 403, ठीक है, 0.8। सही है। आयरन कितना होता है 55.8 प्लस नाइट्रोजन कितना है 14 टाइम्स 3 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 टाइम्स 9 प्लस 9 टाइम्स 18, so it's going to be 403.8। yes, I'm smart enough। तो मुझे अब मास ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 3 नाइट्रेट कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 403.8 से। So multiply 5 exponent minus 3 is going to be 2.0 192. Okay, that's the technical part, isn't it? Whew. Describe how after weighing the mass determined the student should prepare 100 cm cube of 0.5 mole per dm cube iron 3 nitrate. In your answer, name, capacity, apparatus used. Okay. So भाई मैं क्या करूंगा, मैं इस मास को उठाऊंगा और ट्रांसफर करूंगा 250 cm क्यूब बीकर में। फिर उस बीकर के अंदर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके सॉलिड को डिसॉल्व करूंगा। जब डिसॉल्व हो जाएगा उसको, उस मिक्सचर को अच्छी तरह स्टर करूंगा। स्टर करने के बाद उस पूरे सोल्यूशन को ट्रांसफर करूंगा 100 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। सही है, यहां तक मैंने बताया, यहां तक तो लिख लेते हैं। सो वो कह रहे हैं ना आपसे, डिस्क्राइब आफ्टर वेइंग द मास डिटरमिन्ड द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेस 2.019 gram of solid in a 250 cm cube beaker at 50.0 cm cube of distilled water in it. Stir the mixture. Dissolve solid. See, next, transfer this solution in a 100.0 cm cube volumetric flask। ठीक है, जाहिर सी बात है इस बीकर को मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करूंगा, और वॉश करने के बाद उस वॉशिंग को भी इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा। सो वॉश बीकर with 50 cm cube of distilled water। 50 cm क्यूब तो नहीं ले सकते, तो 50 तो पहले ही ले लिया था हमने। 50 अभी दोबारा ले लेंगे तो cm क्यूब 100 हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं। वॉश द बीकर विद 25.0 cm cube of distilled water
ट्रांसफर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफर दिस वॉशिंग into the flask, सही है, stopper the flask and mix well. मिक्स करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, पहले भी बता चुके हैं आपको, ताकि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाए पूरे के पूरे सॉल्यूशन की, ठीक है। ओ माय गुडनेस, आई फॉरगॉट वन थिंग, वेट वेट वेट, इसको अभी यहाँ लिख लेते हैं। नहीं, टॉप ऑफ द सॉल्यूशन तो करना ही भूल गए ना, टॉप ऑफ द सॉल्यूशन, top of the solution dropwise with distilled water until its 100 cm cube mark reached, ठीक है। अब मार्च रीच कर दिया, अब इसके बाद ये लिख दीजिए उठा के, सही है भाई, मेक सेंस। Let's see what we have. Ouch. The student prepared solutions containing various combinations of 0.05 mole per dm cube Fe3 plus ions and 0.05 mole per dm cube aqueous 2 hydroxy benzoate. Okay, तो दोनों की कंसंट्रेशन खास बात ये है कि सेम है, एंड ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा फिर, मोस्ट लाइकली, या देखो इसका टोटल वॉल्यूम 10 है और इसका भी टोटल वॉल्यूम 10 ही, ठीक है। एनी हाउ, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में। The student placed a small sample of each solution into a calorimeter and measured the absorbance. The student made a mistake in test number 9 and did not measure the result. ठीक है, plot a graph on the grid to show how the relationship between absorbance and volume of Fe3 plus aqueous 2 hydro. Draw two lines, the best, use cross, plot a graph on the grid. तो ये मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ ग्रिड के ऊपर और दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया है, ठीक है, जरूरी था ये इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करने के बाद वो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे आगे, यकीनन क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन हमसे ये कर रहे हैं कि use the graph in one to determine the volume of Fe3 plus and aqueous 2 hydroxy benzoic acid which would give the maximum absorbance. तो मुझे बेसिकली वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस फाइंड आउट करना है और मुझे वॉल्यूम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट मालूम करना है, ठीक है, डिटरमिन करने के लिए कह रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस, तो वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस, वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस, वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस, वॉल्यूम ऑफ Fe3 प्लस यहां से आ जाएगा, ये है आपका, सही है, ये अप्रोक्सीमेटली 3.3, इसको हम और थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3.3 cm3, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पे यही वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई 3.3 cm3 Fe3 प्लस, सही है जी। अच्छा, जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जब नहीं दी तो इसका मतलब 1:1 का रेशो है। तो अगर Fe3 प्लस का वॉल्यूम 3.3 है और आपके पास वॉल्यूम 10 था हाइड्रोक्सी बेंजोएट का, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोएट कितना हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम 10 है, उसमें से 3.3 Fe3 प्लस का हो गया तो 6.7 cm3 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट आइन का बच गया, इसको उठाओ और वहां लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वहां लिखने में आसानी हो। ठीक है, लिख देते हैं इसको उठा के। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 6.7। फिर वो आपसे कह रहे हैं the point of maximum absorbance shows where all of the ions are combined in a complex. Use the volume in 2 to determine the number of moles of 2 hydroxy benzoate ions that forms a complex 1 mole of Fe3 plus ions. Okay. That forms a complex. Okay. Kind of a tricky. I need to find out the moles of 2 hydroxy benzoate ion. वॉल्यूम को यूज करना है, यानी 3.3 और 6.7 को यूज करना है। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहली तो बात ये कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, 0.05 मोलर थी, सही, और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.05 मोलर, ऐसा ही है ना, कंसंट्रेशन दोनों की सेम ली हुई थी हमने, राइट। ये देखो, ये Fe3 प्लस आयन की कंसंट्रेशन थी और ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, दोनों का वॉल्यूम है, दोनों के मोल्स आ जाएंगे। चलो वर्कआउट करते हैं, मेक थोड़ा थोड़ा सेंस। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fe3 प्लस कंटेन 0.05 मोल्स। सो अगर तुम्हारे पास 3.3 cm क्यूब है तो बताओ मोल्स कितने होंगे। तो moles of Fe3 plus is going to be 0.05 into 3.3 divided by 1000 is going to be 0.01515। Am I right? मैंने वैल्यू सही ली हुई है, 0.05 3.3 0.05 into 3.3 divided by 1000 is going to be, my goodness, it is 1.65 into 10 to the power minus 4 moles। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह आ जाए थोड़ी सी। फिर हमारे पास सेकंड है 1000 cm क्यूब ऑफ बेंजोएट है हमारे पास, पूरा नाम नहीं लिखा जगह की वजह से। इट कंटेन 0.05 मोल्स, तो अगर आपके पास 6.7 cm क्यूब था तो बताइए उसमें मोल्स कितने होंगे। 0.05 into 6.7 divided by 1000, so it's going to be 3.35 moles of benzoate। ये हो जाएगा आपके पास 3.35 into 10 to the power minus 4 moles। ठीक है, let me recheck my calculation into 6.7 divided by 1000 is going to be 3.35। ठीक है, अब एक तरफ आपके पास हैं Fe3 plus ions के moles which is 1.65 into 10 to the power minus 4, एक तरफ है benzoate के moles यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट और उसके हैं 3.35 into 10 to the power minus 4। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ लीस्ट वैल्यू से, 1.65 into 10 to the power minus 4। तो जब ये कैंसिल होगा तो ये 1 आएगा और जब ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3.35 exponent minus 4 divided by answer। Oh my goodness, what I'm doing, 3.35 exponent minus 4 divided by 1.65 exponent minus 4 is going to be
2.03, that must be 2. Okay, that must be 2. तो इसका मतलब आयरन और बेंजोइट के दरमियान 1:2 का रेशो है। सही है, यानी 1 मोल ऑफ Fe3 प्लस आइन रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट आइंस, यानी ये 1 मोल होगा और ये 2 मोल होंगे, यानी ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड होंगे और ये 1 होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। Fe3 plus ion exists in aqueous solution or complex ion with the formula this: 2 hydroxybenzoate ions are bidentate ligands। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था। इसका मतलब ये 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाएगा, राइट? ओहो, कहाँ जा रही हैं चीजें, आगे चलते हैं। Use this information in your answer to third to suggest the formula of the complex ion formed between Fe3 plus ions and 2 hydroxybenzoate ions। Okay, so यार ऐसा करते हैं, यहाँ इक्वेशन लिखते हैं पहले। और ये तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड है हाइड्रोक्सी बेंजोएट, तो ये बेंजोएट के ऊपर -1 चार्ज है। सही है, और उसने कहा था कि भाई 2 से रिएक्शन होगा, ये 1 मोल होना चाहिए और ये 2 मोल होना चाहिए। ऐसे ही ना, तो मैंने ये 1 मोल लिया, ये 2 मोल लिया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसको हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास बेंजोएट टेकन 2 और 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्योंकि 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर जाएंगे, राइट? अब मसला ये है कि चार्ज कितना आना चाहिए, चार्ज कितना आना चाहिए। देखो, चार्ज को भी डिटरमिन करना सिखाया मैंने क्लास में। आयरन का चार्ज कितना है, 3+, और बेंजोएट पे चार्ज कितना है, -1। कितने बेंजोएट है तुम्हारे पास, 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 और +3 कितना हो जाएगा, +1। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, +1। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है ना, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x लो, बेंजोएट के ऊपर -1 चार्ज होता है, 2 है तो -2 करो, वाटर न्यूट्रल है, हैज नो चार्ज, इक्वल्स टू +1, देन x इक्वल्स टू +3। दैट्स हाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विल रिमेन +3। ठीक है, तो वो तुमसे पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला बताओ, suggest the formula of the complex ion formed between iron ions and this। तो ये रहा वो फॉर्मूला, तो मैं लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा, और ये मैंने बेंजोएट शॉर्ट करके लिखा है, तो आप पूरा लिखो भाई, पूरा लिखो। C6H4OH CO2 negative taken 2 H2O taken 2 ब्रैकेट प्लस। सही है भाई। Name the apparatus that should be used to measure the volume of the solution given in the table accurately। वो टेबल के जो वॉल्यूम हैं उनको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, टेबल के जो वॉल्यूम है उनको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूरेट यूज करोगे ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ब्यूरेट यूज करेंगे उसमें। ओके बेटे, ओके ओके। Let's move on to the next part. In test 9, instead of mixing 8 cm cube of Fe3 plus and 2 cm cube of aqueous 2 hydroxybenzoate, okay, पहली तो बात ये है कि भाई आपने 8 cm cube Fe3 plus और 2 cm cube आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, तो टोटल वॉल्यूम बेसिकली कितना हो गया, 10 cm। ठीक है, आगे चलते हैं। The student mixed 16 cm cube of Fe3 plus and 4 cm cube of aqueous iron, aqueous 2 hydroxybenzoate। So guys, अब जो आपने एडिशन की है, इसमें भी टोटल वॉल्यूम तो आपके पास सेम ही आ रहा है।
दैट इज 20.0 cm3। ठीक है, ठीक है। एंड रिमेंबर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0.05 मोलर, और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0.05 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों की सेम रखी हुई है, वॉल्यूम हमने चेंज कर दिया, राइट। तो अब थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं। एक मिनट, Fe3+ है मेरे पास और बेंजोएट है। अगर मैंने इसमें 8 cm³ लिया है और इसमें 2, तो अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो ये हो जाएगा 4:1, है ना। ये मेरी, ओहो, ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी है, 4:1। दूसरी देखो, अगर मेरे पास Fe3+ है और मेरे पास बेंजोएट है, और मैंने उस बेंजोएट में भी 16.0 और 4.0 लिया है, और मैं रेशो निकालने के लिए इसको 4.0 से डिवाइड कर दूं, तो रेशो क्या बनेगा, 4:1 का। तो इसका मतलब रेशो भी सेम है, वॉल्यूम का रेशो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंस, वॉल्यूम भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो जाहिर सी बात है, मेरे पास तो यहाँ 20 नहीं है, तो मेरे पास 20 और 16 का तो नहीं है ऑप्शन, राइट। तो मेरे पास 8 cm³ का है, तो मैं 8 cm³ को देखूंगा, और 8 cm³ में मैं, ये है 8 cm³, और इस 8 cm³ पे कितना रहा है, अच्छा एक मिनट, डिफरेंट कलर यूज कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ये आ रहा है जनाब, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास, और ये वैल्यू आ रही है आई थिंक सो 23 पॉइंट समथिंग, 23, 21 to 22, आई थिंक सो ऐसा ही है, या 23 पॉइंट आई थिंक सो 2 आ रही है, ये वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास। सो वॉल्यूम कह रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है, अरे यार आई एम सो बैड, ये एब्जॉर्बेंस है 23.2, सही है, एक मिनट देख लूं मैं, 21, ये हो गया 25, 21, 22, 23, 23 आ रही है मेरे पास, ठीक है, 23.0 गाइस एब्जॉर्बेंस आ रही है, तो मैं यहाँ पर 23.0 लिखूंगा एब्जॉर्बेंस, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इन कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन फॉलोज द रिलेशनशिप। ए जो है वो एब्जॉर्बेंस, कोई यूनिट नहीं होता, सी कंसंट्रेशन होती है, एल जो है वो पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइट है जो कि सॉल्यूशन में से पास होगी, और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं एप्सिलॉन, ये एक कांस्टेंट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहलाता है, ठीक है। डिटरमिन द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो मुझे एप्सिलॉन की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो मुझे इस रिलेशनशिप को एक्चुअली रीअरेंज करना होगा। तो मैं रीअरेंज करने के लिए एप्सिलॉन को एज इट इज रखूंगा, और ये हो जाएगा ए अपॉन सी इंटू एल। अब ए क्या है, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो लिख दीजिए नो यूनिट, ओवर सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब, इंटू एल क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सही है। तो भाई अगर आपके पास यूनिट है तो यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेंटीमीटर, राइट। तो फाइनल यूनिट क्या बनेगी, मोल इनवर्स डीएम क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। All right, that's the end of this question paper.
ये मैंने पूरी मार्च सीरीज पेपर 5 की सॉल्व कर दी है। होपफुली आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा इस पे।